Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I welcome you all in today's online class. Dear students, in today's lecture we will see spectroscopy, types of spectroscopy, electromagnetic radiations, principle of spectroscopy and interaction of radiations with matter. Spectroscopy. It is the branch of science that deals with the study of interaction of matter with light. Or you can say it is a branch of science that deals with the study of interaction of electromagnetic radiations with matter. यानी इस ब्रांच ऑफ साइंस में आप ये देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आप अपने सैंपल के ऊपर फॉल करते हैं तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं सैंपल के साथ. नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? Electromagnetic radiation consists of discrete packages of energy which are called as quanta, or in case of light these are photons, right? कोई भी एनर्जी हो वो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेजेस से मिलके बनती है जिनको क्वांटा कहते हैं, और जब ये एनर्जी स्पेसिफिकली लाइट एनर्जी हो तो उन क्वांटास को आप लोग फोटॉन्स का नाम देते हैं. The photons consist of an oscillating electric field and an oscillating magnetic field which are perpendicular to each other. This diagram is showing you the last point that electric field and magnetic field associated with the photons of light are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of the propagation of light. Now these are the basic concepts that we have already discussed in the previous lectures. That what is frequency? Frequency is defined as the number of times electrical field radiations oscillate in 1 second, or you can say the number of waves passing through a point per second. Then wavelength, it is the distance between two nearest parts of the waves in the same phase. That is the distance between two nearest crusts or troughs. Actually today's lecture is all about V, and we have already discussed in detail all these basic concepts. So this is the visual display of the light on a paper कि किस तरीके से ये वेव ऑफ लाइट मूव करती है. वो पोर्शन जो ऊपर है इस लाइन के उसको आप क्रस्ट का नाम देते हैं, जो बिलो है उसको आप ट्रफ का नाम देते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस अबव और बिलो जो होता है उसको एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं. इसी तरीके से दो कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस इसको वेवलेंथ कहा जाता है. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज C इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा. ये जो वी आपको नज़र आ रहा है आप इसको न्यू प्रोनाउंस करते हैं. इट इज़ अ सिंबल फॉर फ्रिक्वेंसी, एंड लैम्डा इज़ अ सिंबल फॉर वेवलेंथ, एंड सी इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट. And as photon is subjected to energy, so E is equal to h nu, and as we know that nu is equal to c by lambda, तो ये वैल्यू आ जाती है E is equal to h c by lambda, where h is Planck's constant. Now dear students, in the last lecture I told you about electromagnetic radiations in detail, starting from the gamma rays and then discussing X-rays, UV, visible, IR, micro, and then lastly we did discuss the रेडियो वेव्स. ये डायग्राम भी आपको सेम चीज़ शो कर रही है कि जब आप गैमा रेज से एक्स रेज की तरफ मूव करते हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है और एनर्जी कम होती जाती है. इस तरीके से अगर आप कंपेयर करें यूवी रेडिएशंस को और आईआर रेडिएशंस को, तो यूवी रेडिएशंस की वेवलेंथ जो है वो कम होगी और इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आईआर. और इसी तरीके से गैमा रेडिएशंस विल हैव द लोएस्ट wavelength of all among these electromagnetic radiations and will have high energy associated with its photons. जब आप वाइट लाइट यानी विजिबल रीजन, ये जो आपको यहाँ पर विजिबल रीजन नज़र आ रहा है ना, जहाँ विजिबल लिखा हुआ है यूवी और आईआर के दरमियान में, इस विजिबल रीजन को अगर हम देखें, इस विजिबल रीजन की लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स में या 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, यानी विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. पूरी की पूरी ये जो रेंज है वाइट लाइट की, जिसके अंदर 7 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 7 वेवलेंथ्स, इनकी वेवलेंथ रेंज कितनी होती है 400 टू 780 नैनोमीटर्स, जिनमें 400 टू 420 वायलेट कलर है. देन इंडिगो की रिस्पेक्टिव वेवलेंथ रेंज इंडिकेट की गई है और सारे कलर्स की, एंड एट द एंड यू कैन सी रेड लाइट के लिए 620 से 780 नैनोमीटर की रेंज है. सो ओवरऑल विजिबल रीजन का पूरा जो स्पेक्ट्रम है इसकी रेंज होती है 400 टू 780 नैनोमीटर.
Now, what is the principle? The principle is based on the measurement of the spectrum of sample containing atoms or molecules. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल डिस्कस करते हुए कि जब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सैंपल के ऊपर फॉल किया जाता है तो दो तरह से वो इंटरेक्ट करती है। एक ये कि वो रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर लेगी और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, यानी एक्साइट हो जाएंगे। और सेकेंडली क्या होगा कि वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। अब एक्साइटेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई थी और डी एक्साइटेशन में जो इमिट हुई थी, आप इन दोनों में से किसी भी किस्म की रेडिएशंस को मैयर अगर करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं डाटा को, तो उस प्लॉट को आप स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं और ये डाटा आपको बताता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सैंपल। Now, spectrum is a graph of intensity of absorbed or emitted radiation by sample versus frequency or wavelength. तो सेम चीज़ मैंने आप लोगों को बताई ये भी ब्रीफली कि स्पेक्ट्रम किस चीज़ को कहते हैं कि वो रेडिएशन जो इमिट या अब्जॉर्ब होती हैं एग्जांपल से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास किया जाता है उस दौरान उनको जब आप मैयर करते हैं और प्लॉट करते हैं तो उस प्लॉट को आप स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। एंड स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू मैयर द स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड। Now, dear students, this slide is showing you the same information as I have discussed in the last two lectures कि दो किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है बेस्ड ऑन द रेडिएशंस इमिटेड और अब्जॉर्ब। तो उसी चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है इन द फॉर्म ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इन द फॉर्म ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप अब्जॉर्ब रेडिएशंस को डिस्कस करते हैं और उनको रिकॉर्ड करके प्लॉट किया जाता है और उनसे स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है, तो दैट इज़ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एग्जांपल्स गिवन है यूवी, विजिबल, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस पर्टिकुलर टाइप में आती हैं। एंड देन कमिंग टू वर्ड्स द इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रेडिएशंस एमिट होती हैं आप उनसे अंदाज़ा लगाते हैं और इसकी एग्जांपल में है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। Now, this is a very important portion and somehow something new for you in this lecture, and that is कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल की जाती हैं सैंपल के ऊपर तो वह कैसे इंटरेक्ट करती हैं और उसमें क्या चेंजेस इंड्यूस कर सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो वो रेडिएशंस हाई एनर्जी रेडिएशंस हों, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेडिएशन, तो जब उनको आप पास करते हैं अपने सैंपल से तो वो क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं और उनकी वेवलेंथ कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा देती हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स टू द हायर एनर्जी लेवल्स, यानी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट हो जाते हैं। Now what happens if you pass IR रेडिएशंस, अगर आप इंफ्रारेड या IR रीजन की रेडिएशंस को पास करते हैं तो उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेशनल जो है सॉर्ट ऑफ चेंज आता है उनके अंदर। आप कह सकते हैं कि व्हेन आईआर रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू एंड अदर, सो इट वाइब्रेट्स विद हायर एम्पलीट्यूड। यानी हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि हर चीज़ जो है उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब आईआर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में नहीं जाते क्योंकि आईआर की रेडिएशन जो होती हैं उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी यूवी की है। लेकिन जो चेंज आता है वो ये होता है कि वो पार्टिकल्स, एटम्स या जो भी पार्टिकल्स जिनको आप एग्जामिन कर रहे हैं वो जिस एम्पलीट्यूड से पहले वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और अब उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा विगरस हो जाती हैं। और इसी तरीके से the rotational energy level, these energy levels are quantized and discrete and the spacing between energy levels are even smaller than the vibrational energy levels। यानी आप यूँ याद रखें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराना हो तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, उससे कम एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन के लिए, या आप यूँ बात कर लें कि वाइब्रेशनल मोशंस को इंड्यूस करने के लिए या वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड को इन्हांस करने के लिए चाहिए होती है, और सबसे कम एनर्जी जो होती है वो रोटेशनल के केस में रिक्वायर्ड है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम गिवन इन योर बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम इस लिहाज से है कि ये बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों को कन्वे कर रही है कि किस तरीके से
किस किस्म की रेडिएशंस कौन सी रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ चेंज इंड्यूस करती हैं सब्सटेंस में। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले है यूवी विजिबल रेडिएशन, उसके बाद आईआर, फिर माइक्रो और रेडियो वेव, इनको कंपेयर किया जा रहा है। आप लोगों को सबसे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि यूवी विजिबल रेडिएशंस इन चारों किस्म की रेडिएशंस में सबसे कम वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा एनर्जी रखने वाली हैं, और उसके बाद आईआर एंड देन माइक्रो और रेडियो, यानी रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे कम होगी। अब जब वाटर के अंदर से पास किया जाएगा इसको, तो यूवी विजिबल रेडिएशन अगर पास की जाती हैं तो वो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, दोज विल एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। अगर इंफ्रारेड रेडिएशन को पास किया जाता है तो कंपैरेटिवली उनकी एनर्जी कम है, तो वो किस किस्म का चेंज इंड्यूस करेंगी, वो बॉन्ड वाइब्रेशन कॉज कराएंगी इनके अंदर। अगर माइक्रो को पास किया जाता है, माइक्रोवेव्स को, तो दोज विल रोटेट द मॉलिक्यूल, एंड इन केस ऑफ रेडियो वेव्स मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस will takes place, and that is concerned with NMR, that is nuclear magnetic resonance। इसकी बात हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में करेंगे इंशाल्लाह। So that is all for today. Thank you so much. Stay blessed, stay safe.